So welcome to the students. So let us start another lecture on the topic of column here. Already we have discussed the two lectures, and in the second lecture, this is a very important one, first lecture, that is the introduction part, and also we have calculated the critical load in case of the rigid column, right? In the second lecture, we have discussed about the Euler theory of buckling, and this Euler theory of buckling, that is for the actual column or deformable column to calculate the buckling load there. You understand? तो इसका सारा डेरिवेशंस वी हैव कंप्लीटेड, पूरा ये इक्वेशंस हमने बकलिंग लोड का जहाँ पे ड्राइव किया था, और जो उसके बाद हमें जो बकलिंग लोड का इक्वेशन मिला, दैट इज पी सी आर So in this case, PCR, buckling load, this is equal to pi square EI minimum about L square, right? So after solving the Euler equations of beam theory, Euler equation of the bending of beam theory, we solved that equation and we got the relation on this. But in that case, we have used the end conditions when the column is hinged at both ends. You understand? तो ये जो equation हमने solve किया था, and we got this relation buckling load, उसमें क्या condition था कि column जब आपका दोनों end से क्या है, that is hinged. You understand? Now, before going to the other end conditions and discussing about that, first of all, we have seen here, this is I minimum. I think this I have already discussed in my fade end of my second lecture, or mostly जो है, I don't know whether the students have seen that या नहीं, because लंबा lecture है होता है, and mostly the students have less patience about that, and I don't know whether they have seen. So I will explain this. Why I minimum I have taken here. In this case, I minimum हम क्यों लेते हैं? Just understand. Suppose if we have a rectangular cross section of the column. आपके पास एक column है, उसका rectangular cross section है. You understand? So this is the rectangular cross section of the column. You understand this? Column का top view का rectangular cross section of the column, and it is the two axes, both are parallel to each other. अगर टॉप से देखें तो ये दो एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यू अंडरस्टैंड? इट इज हैविंग द टू एक्सिस. नाउ द क्वेश्चन इज, द कॉलम इज ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड वी हैव टू सी about which direction the column will buckle first, whether it is about x-axis or about y-axis. You understand? And how we can know that in which direction the column will buckle? That is the case which depends upon the moment of inertia. You understand? ये moment of inertia के ऊपर depend होगा. You know, the bending will happen about x-axis, or you can say the bending moment that is about x-axis and about y-axis, because both are the parallel axis. तो bending moment आपका जो है parallel axis के about होता है. So this is x-axis and this is y-axis. What the question is, about which axis the column will buckle or bend first. This we have to see. And this depends upon the moment of inertia. Moment of inertia means what? What is the definition of moment of inertia? Moment of inertia means the resistance of the column, जहाँ पे हम column की बात करेंगे, because we are, or you can say resistance about the bending moment. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बेंडिंग मोमेंट जो कोई भी बॉडी है
कोई बीम है, बॉर है, कोई भी जिसका बेंडिंग मोमेंट होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा कि बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यू अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स दैट इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दैट इज लेस, सो यू कैन से इट्स बेंडिंग मोमेंट इज मोर और बेंडिंग इज मोर. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द डेफिनेशन? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अबाउट बेंडिंग मोमेंट. यू अंडरस्टैंड? कोई भी बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस अबाउट द बेंडिंग मोमेंट. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो यू कैन से जो बॉडी है दैट विल, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉडी जो होगी उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? कम होगा. वो रेजिस्ट करेगा बेंडिंग मोमेंट को क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है. एंड इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस, द बॉडी विल बेंड easily. You understand this? So likewise, this is the case of the rectangular cross section. And if you will see the top of the rectangular cross section, you will find there it is the shape like this, rectangular shape. This is the x-axis and this is the y-axis. And x-axis and y-axis both are parallel to each other. मैं इसका top view डाल के बता दूँ. इसका top view like this होगा. This is the top view. Right? This is the top view of this. तो ये आप देखिए, ये जो टॉप व्यू है अगर कॉलम का, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कॉलम. जहाँ पे ड्रा कर लीजिए ये. Right? So this is the top view of the column. The load is acting like this. ये आपका लोड है P. The P load is acting like this here. Axial load, ये एक्सिस ऐसे है. तो ये जो आपका एक्सिस है, दिस वन, और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. यू अंडरस्टैंड? सो अगर मैं देखूं जहां पे सपोज जहां से लेके जहां तक जो इसकी हाइट है कॉलम का, दिस इज बी है, सॉरी एच है, हाइट ऑफ द कॉलम इज एच एंड दिस वन इज बी. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा? बिकॉज जहाँ पे देर आर द टू प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वन इज आई एक्सिस एंड अनदर वन दिस इज आई वाई वाई. तो आई एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज बी इंटू एच क्यू बाई 12, राइट? एंड आई वाई दिस इज इक्वल टू एच इंटू वी क्यू बाई 12, राइट? So if you will see from this equation, you can say that the moment of inertia Iy, this moment of inertia Iy, you can say Iy less than Ix. You understand? So moment of inertia of this rectangular column जो y-axis के about होगा वो क्या होगा? कम होगा as compared to the moment of inertia about x-axis. So what does it mean? It means that if the moment of inertia about y-axis that is less, it means that the resistance about bending moment, resistance of the bending moment about y-axis that is less. रेजिस्टेंस जो बेंडिंग मोमेंट का है y-axis के ऊपर वो क्या होगा? कम होगा. और रेजिस्टेंस अबाउट
resistance of the bending moment about x-axis, that is more. You understand? So it means that the column will buckle first about y-axis. Rectangular क्रॉस सेक्शन में जो कॉलम होगा वो क्या होगा, बकल करेगा अबाउट वाई एक्सिस फर्स्ट. तो आई एक्स की तो बात ही नहीं आएगी, जहां में कॉलम बकल करके फेल हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड हियर? सो बकलिंग ऑफ द कॉलम इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सॉरी, दैट इज अबाउट वाई एक्सिस. यू अंडरस्टैंड हियर? तो इसलिए आई हैव टेकन द आई मिनिमम. आई मिनिमम से हमें वी कम टू नो हियर कि बकलिंग किस डायरेक्शन में होगी. मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कम है या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस डायरेक्शन में कम है. जिस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा, द बकलिंग ऑफ द कॉलम इज अबाउट दैट डायरेक्शन, अबाउट दैट एक्सिस. यू अंडरस्टैंड? You understand this point? So we have written I minimum. So I minimum का मतलब ये है कि हमें ये इसलिए we have written here I minimum कि because we have to take the minimum value of the moment of inertia. Minimum value of the moment of inertia, that is about the buckling load. Buckling load you can say depends upon the minimum value of the moment of inertia. तो जहाँ पे minimum value moment of inertia का होगा, the column will buckle in that direction first. You understand this? So this is second one. If I will take the circular cross section, ये तो rectangular की बात की मैंने. अगर मैं circular cross section लेता हूँ, suppose if I take the circular cross section like this, तो circular this is the circular cross section and this is the diameter of the column. Load P is acting on that top view. This is the top view देख रहे हैं हम. Top view में क्या होगा, एक ये आपका एक्सिस होगा x एक्सिस and this is the y axis. You understand? ये आपका x axis and this is y. You understand this? But in this case, this is the circular cross section. और circular cross section में जैसे आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया Ix दिस इज इक्वल टू Iy, क्योंकि इसका फार्मूला है पाई बाई 64 इंटू d4. यू अंडरस्टैंड दिस? डायमीटर सेम, चाहे वो आई एक्सिस के केस में लें चाहे आई वाई के केस में लें, तो डायमीटर आपका सेम है. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दैट इज सेम. सो यू कैन से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में आई मिनिमम अगर आपने लिखना है वो अबाउट आई एक्स भी ले सकते हैं, अबाउट वाई आई वाई भी ले सकते हैं, बिकॉज आई मिनिमम इज इक्वल टू वाई. यू अंडरस्टैंड हियर? जहाँ पे आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा दैट इज ट्रीटेड एज द मिनिमम. वही मिनिमम, आई मिनिमम की जगह आप आई लिख लीजिए. इन दिस केस इन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम. व्हाट इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, आई वाई इज लेस देन दैट ऑफ द आई एक्स. तो ऑलवेज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जिस कॉलम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ऑलवेज दैट कॉलम विल बेंड अबाउट वाई एक्सिस. वो इस साइड वेज के ऊपर एक्स कर बेंड करेगा, ना कि इस साइड के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, इस साइड के ऊपर बेंड करेगा, नॉट लाइक दिस. वो इस तरीके से साइड वेज, दिस इज कॉलम, ये साइड वेज के ऊपर बेंड करेगा, ना कि वो इस तरीके से लाइक दिस अप टुवर्ड्स यू वो बेंड करेगा. एक्स एक्सिस नहीं होगा. अगर आप स्टील रूल ले लें, मेरे पास तो अभी है नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखिए जब उसके ऊपर आप लोड लगाएंगे तो ऑलवेज इट विल बकल लाइक दिस. वो कभी इस तरीके से बकल नहीं होगा, नॉट लाइक दिस. You understand this? So this is a very important concept to understand I minimum. जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है. अब आ जाइए एक्चुअल टॉपिक के ऊपर. अब देखिए दिस फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था फ्रॉम द एलवर इक्वेशन से बकलिंग लोड का, ये फार्मूला हम जब ड्राइव किया था तो उसमें हमारी जो एंड कंडीशन थी, सो इन द एलो थ्योरी ऑफ बकलिंग, जो हमारा क्रिटिकल लोड का हमने जो फार्मूला था पी सी आर, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, राइट.
So this formula we have derived by solving the Euler's equations and by using the end conditions of the column when both the ends are hinged. कॉलम की कौन सी कंडीशन यूज की थी? When both the ends are hinged. You understand? This is the condition when both the ends are hinged. आप this is a ये अब कॉलम है आपका, right? And so this is when both the ends of the columns are hinged. You understand? J भी आपका hinge है और J भी column आपका क्या है? Hinged है. You understand? So in this case we have derived the equation और जो आपकी end conditions थी उसमें क्या थी end conditions? That is x equal to 0, L equal to 0, x equal to L and y is equal to 0. X equal to 0, y is equal to 0. Right? So these are the end conditions and that is in case of when both the ends are hinged. अब what is your x? When we have derived this equation तो हमने क्या किया था, एक सेक्शन ले लिया था जहाँ से ऊपर से और जिसका डिस्टेंस था जहाँ से लेके जहाँ तक x, राइट? सो x इज 0, वर्टिकल ऊपर चले जाइए जब x की वैल्यू, जब बिकॉज दिस डिस्टेंस x इज फ्रॉम द वर्टिकल, जहाँ से टॉप से जहाँ तक जो सेक्शन तक डिस्टेंस है दैट इज x. व्हेन x इज 0, x अगर आपका 0 हो गया जहाँ से ऊपर, तो जहाँ पे देखिए डिफॉर्मेशन क्या है? 0 है. तो इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी, इसकी डिफॉर्मेशन थी आपकी जस्ट लाइक दिस इन केस ऑफ बोथ द एंड्स आर हिंज्ड. यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे डिफॉर्मेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. एंड जहां पे अब x की वैल्यू क्या है? जहां से लेके जहां तक जो वैल्यू है दिस इज L. सपोज इफ आई से L इज द लेंथ ऑफ द कॉलम. If x is equal to L, then again y is equal to 0. अगर x जो है L के बराबर है तो y क्या है? y जहाँ पर भी 0 है आपका और y आपका जहाँ पर भी 0. You understand? So this is the first condition we have taken in case when both the ends of the columns are hinged, and then we have calculated this formula for the critical load, right? जब कॉलम का j कंडीशन लिया था कि when both the ends are hinged, we have derived this equation. You understand? But now the problem is, it is not necessary that you are only having this end conditions, or you can say it is not necessary that column is like this, one end is hinged. In this case, both the ends are hinged. But it is not like this condition. There may be other options also. Means one end of the column is fixed, other end is free. This is also the option. Or you can say both the ends of the columns are fixed. Then in that case आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा? उस केस में आपका ये फार्मूला बकलिंग लोड का क्या होगा? Or you can say when one end is fixed and other end is hinged. In that case, what is the formula for the buckling load, right? You understand? So these are the 4 end conditions. You can say हमारे पास 4 end conditions हैं. तो 4 end conditions के ऊपर end conditions of the column. You understand? So there are 4 end conditions of the columns. That is one end is fixed. 4 end conditions हैं. 4 end conditions क्या हो सकती हैं? फर्स्ट तो हमें ले लिया
व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन के ऊपर तो हमने ये रिलेशन जो है आपका ड्राइव कर लिया, जब दोनों एंड्स आपके हिंज होंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन फर्स्ट कंडीशन थी, व्हेन both the ends are hinged. So this is the first condition। और फर्स्ट कंडीशन के ऊपर हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस आई थी वो क्या थी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, l and y इक्वल टू 0। So on these boundary conditions we have solved the Euler's equation and got this relation buckling load का, you understand। सेकेंड हमारी जो एंड कंडीशंस हैं इन केस ऑफ कॉलम, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, अगर एक एंड आपका फिक्स है एंड अदर एंड इज फ्री, एक एंड फिक्स है और अदर एंड आपका फ्री है, दिस इज द सेकंड कंडीशन कॉलम के केस में। थर्ड आप कह सकते हैं, when both the ends are fixed, जब दोनों ends फिक्स हों उस वक्त हमारी Euler's equation क्या बनेगी, and how we will solve the Euler's equation in that case, and when one end is fixed and other end is, जब एक एंड फिक्स होगा और अदर एंड, यू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द फोर कंडीशंस इन केस ऑफ द कॉलम्स। देयर मे बी अदर कंडीशंस आल्सो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, when both the ends are hinged, and on this basis this is the boundary conditions, जिसके बेसिस के ऊपर हमने बीम थ्योरी ऑफ Euler इक्वेशंस को, Euler इक्वेशन जो आपका बीम थ्योरी था बेंडिंग का, उस इक्वेशन को हमने, कौन सी इक्वेशन थी आपकी, EI d स्क्वायर y dx स्क्वायर इन दिस इज इक्वल टू py, दिस इज द Euler इक्वेशन ऑफ बीम थ्योरी ऑफ बेंडिंग, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, जे आपकी बाउंड्री कंडीशंस थी और जे आपकी एंड कंडीशंस थी, उसके ऊपर सॉल्व करने के बाद वी हैव गॉट दिस रिलेशन। बट एज आई टोल्ड यू दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली वी हैव गॉट दिस only one end conditions, there may be the other end conditions also। So in this case, how we will solve the Euler's theory of buckling, ये जो फार्मूला क्रिटिकल लोड का है, how we will drive that, just understand this। इसको आप नोट कर लीजिए। Suppose I will take this case number second I will take, ये आपका केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड हम लेते हैं। केस नंबर सेकंड क्या था, सेकंड केस, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड other end is free। जब आपका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, यू अंडरस्टैंड। देखिए ये कंडीशन है इस तरीके से, वन एंड इज फिक्स्ड, ये सपोज मैं सिंगल लाइन में ही ड्रा करूँगा इसको, वन एंड इज फिक्स्ड एंड other end is hinged, you understand। एक एंड फिक्स है और you are free, this is one end is fixed
this is other end is free, and this is the column. So in this case, when we will apply the load, axial load on the column, जब हम कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड को अप्लाई करेंगे तो इट विल बेंड लाइक दिस. Right? So it will bend like this. Right? तो ये इस तरीके से बेंड करेगा when we will apply the axial load on the column like this. जहाँ ऐसे बेंड करेगा, जहाँ इस तरीके से भी बेंड कर सकता है. राइट? Either it bends like this or it bends like this because one end is fixed and other end is free. So it will bend. तो मैंने ऐसे ही शो किया है according to this. So it will bend like this. Now, अब देखिए ये जो कॉलम है जहाँ से लेके जहाँ तक, इसका जो लेंथ है आपका, this is equal to L, right? So the curve is like this. Now, to find the same diagram, suppose अगर मुझे, क्योंकि ये जो डायग्राम थी या ये जो बेंडिंग थी आपकी कॉलम की, ये किस कंडीशन में थी? x equal to 0, y equal to 0, x equal to L and y equal to 0. You understand? If I want to get this the same diagram, or you can say same type of the deformation just like bow, तो मैं ऐसे अगर इसको करूं, suppose if I will so if I will extend it like this, अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड करता हूं, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I will extend it like this, तो ये तो आपका एक्सिस चला जाएगा. दिस इज योर एक्सिस. अब जो आपका एक्सिस है कॉलम का, वो जहाँ पे नहीं होगा, द एक्सिस ऑफ द कॉलम लाइक दिस. You understand? तो just like to make the same conditions, मुझे ये कंडीशन सेम बनाने के लिए जो आपकी when both the ends are hinged, उस कंडीशन में क्या था कि x इक्वल टू 0 था, y 0. तो जहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे आपका x 0 हो गया, तो y क्या है जहाँ पे 0. You understand? X equal to 0, y equal to 0, because this is the axis, and if this is the L, and if I will extend the length L, same length I will extend here, तभी तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका बो टाइप शेप तभी तो बनेगा. तो आप कह सकते हैं कि from here to here, this is also equal to L. You understand? So only then the diagram will complete. You understand this? तो आप देखिए इसमें भी जो आपका, अब now you see the boundary conditions. हमने क्या किया? We have extend the length of this. और ये जो बो टाइप डायग्राम थी, we have completed the diagram, और ये जहाँ पे बनी, और जो टोटल लेंथ थी जहाँ पे इस केस में जो टोटल लेंथ आई वो आई L प्लस L,
that is equal to 2L. You understand? Because we have derived the equation of this buckling load on these conditions: x equal to 0, y equal to 0, x equal to L, y equal to L. You understand? And when I have taken the condition when one end is fixed and other end is free, I had tried to make the same type of conditions. मैंने अगर सेम टाइप ऑफ कंडीशन इस केस में कब मिलेंगी? व्हेन वी विल कंप्लीट दिस डायग्राम और कंप्लीट द बेंडिंग डिफॉर्मेशन लाइक दिस. और इसको कंप्लीट करने के लिए क्या किया? जितना लेंथ ऊपर था उतना लेंथ आपका नीचे आएगा. यू अंडरस्टैंड? देन ओनली द अदर पार्ट ऑफ द दिस बेंडिंग कैन बी कंप्लीटेड. इसमें देखिए, इसमें जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आपकी बाउंड्री कंडीशन सेम होगी जिस बाउंड्री कंडीशन के ऊपर हमने इस रिलेशन को ड्राइव किया था. तो इसमें भी जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है वो आपकी आ गई x इक्वल टू L. तो L मीन्स जहाँ पे 2L आ गया. यू अंडरस्टैंड? x इक्वल टू L ही ले लो, लेंथ ले लो. L मीन्स लेंथ. तो जहाँ पे टोटल लेंथ आ गई L एंड y इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन से इफ आई विल एक्सटेंड द डायग्राम लाइक दिस, तो ये आपका इस केस में आपका जो लेंथ होगा वो आपका लेंथ L नहीं होगा, बट इस केस में आपका लेंथ क्या होगा? 2L होगा. तो कह सकते हैं कि आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इसमें इन केस ऑफ लेंथ, बाउंड्री कंडीशंस क्या आई? s इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2L एंड y इक्वल टू 0. सो यू कैन से दैट द बाउंड्री कंडीशंस आर सेम एज हियर. जब आपका x 0, y 0, जब x जो है पूरी लेंथ के बराबर था तो y 0, जहाँ पे x पूरी लेंथ क्या है? जहाँ पे 2L है तो y आपका 0 है. सो यू कैन से दिस बाउंड्री कंडीशंस एंड दिस बाउंड्री कंडीशन इज सेम. यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए, अब जो आपका PCR का फार्मूला है, PCR बकलिंग लोड इन दिस केस क्या आएगा? बकलिंग लोड इन दिस केस आपका आएगा पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपान, अब लेंथ क्या हो गया? जहाँ पे L स्क्वायर था जहाँ पे आपका आ गया 2L का स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? जहाँ पे क्या आ गया? 2L का स्क्वायर. नाउ इफ यू विल सी और कंपेयर दिस फार्मूला फॉर द बकलिंग लोड और दिस फार्मूला फॉर द बकलिंग लोड, ये वाला, you can see everything is same. Pi square EI minimum, everything is same. Only the difference is that is in the length. Here is L square, here is 2L square. You understand? So we can say 2L, this is called the effective length. You understand? So we can say effective length का concept आपको जहाँ से मिलेगा. You understand this? So you can say that in every condition, Alvar has given the concept of the effective length. सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ डिफरेंट कंडीशंस में आपको लेंथ जो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ है और इफेक्टिव लेंथ है वो आपका डिफरेंट होगा. यू अंडरस्टैंड? सो 2L इन इस केस में यू कैन से दिस इज द इक्विवेलेंट लेंथ और effective length, and this is denoted by L. You understand? So everything is same, only you will see the difference in the length, and that equivalent length जो भी होगा that is called the effect. अब इसमें equivalent length क्या है या effective length क्या है इस condition में? That is 2L. You understand? So 2L this is equal to LE. इसको हम डिनोट करेंगे, जनरल जो फार्मूला लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे? PCR पाई स्क्वायर EI minimum LE square. You understand? So LE square means effective length. Effective length क्या है?
effective length, you can say this is the distance between the two end conditions, or between the 2 points where the bending deflection or the lateral deflection is 0. ये वो लेंथ है 2 पॉइंट्स के बीच में जहां पे आप लेटरल डिफ्लेक्शन आपकी 0 होगी। अब इस केस में, अब देखिए इस केस में लेटरल डिफ्लेक्शन 0 कहां थी? एट द लेंथ L के ऊपर लेटरल डिफ्लेक्शन 0 थी, तो आप कह सकते हैं LE इज इक्वल टू L in case of when both the ends are hinged. You understand? When both the ends are hinged, LE is equal to L. Because the effective length, this is the distance between, or the length between the 2 points where the lateral deflection are y equal to 0. You understand? जहाँ अब इस केस में देखिए, when one end is free and other end is fixed, इस केस में जो आपकी effective length होगी वो क्या है? ये 2L है, दिस इज LE is equal to 2L. You understand? The rest of the formula is same. Pi square is same, E is same, I minimum same. Only there is the difference in the length, right? So likewise, इस तरीके से उन्होंने दिया था। अब देखिए, अगर आपका we will try to understand the concept of this. ये इसको रहने दीजिए, बाकी मिटा दीजिए। देखिए, when one end is hinged and other end is fixed, अगर आपका when one end is fixed and other end is राइट, तो जब एक एंड फिक्स होगा तो अदर एंड हिंज है, मीन्स जस्ट लाइक दिस। और right, this is the column of length L, one end is fixed and other end is hinged like this, right? दूसरा एंड आपका हिंज है, एक एंड फिक्स है एंड अदर एंड इज अब देखिए, this is the condition. Now if I will apply the force or axial load on the column, suppose ये आपका axial load है column के ऊपर P, if I will apply the axial load of the column, अब देखिए there are the 2 points, ये जो टॉप वाला पॉइंट है कॉलम का that is hinged है आपका, और J पॉइंट आपका नीचे वाला फिक्स है। You understand? जो टॉप वाला पॉइंट है हिंज्ड है, तो हिंज्ड में क्या होगा? रोटेशन होगी, राइट? हिंज्ड है तो रोटेशन जहां पे आपका, जहां से आपका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? 0 होगा, बट ये रोटेशन जहां पे होगी इस तरीके से हिंज पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, बट दिस एंड इज फिक्स्ड। अब देखिए, जब जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, इसमें तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट ए इलास्टिक थिंग। दिस वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, राइट? जब लोड लगाएंगे तो जहाँ पे, तो देखिए ये जहाँ पे तो रोटेशन होगा जहाँ पे हिंज है, लेकिन जो आपका हिंज एंड है जहाँ से लेके जहाँ तक क्या है, ये फिक्स है। जो रोटेशन इसकी होगी, वो आपकी रोटेशन जो होगी वो इस पॉइंट से होगी। यू अंडरस्टैंड? थोड़ा पार्ट जो फिक्स है वो आपका स्ट्रेट ही रहेगा, वो रोटेट नहीं करेगा, बट जो रोटेशन आपकी होगी वो इस पॉइंट के ऊपर होगी, क्यू पॉइंट के ऊपर। यू अंडरस्टैंड?
because this part is fixed. जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने फिक्स किया है, ये हिंज किया है, यू अप्लाई द लोड, जहाँ से तो आपका क्या है, जब लोड होगा तो जहाँ से तो इस पॉइंट से बेंडिंग होगा, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल फिक्स है तो जो फिक्स होने के कारण क्या होगा कि अप टू सम लेंथ आपका बेंडिंग क्या होगा, जीरो होगा, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से बेंडिंग स्टार्ट होगा। ये जो पोर्शन है आपका कॉलम का, ये स्ट्रेट रहेगा, और उसके ऊपर में एक ऐसा पॉइंट होगा जो बेंडिंग होगा, विच इज शोन बाय दिस, विच आई हैव शोन हेयर, कि क्यू के ऊपर आपकी बेंडिंग स्टार्ट होगी, जहाँ से आपकी रोटेशन स्टार्ट होगी, बट दिस अप टू फ्रॉम हेयर फिक्स्ड एंड टू दिस पॉइंट क्यू इट विल बी स्ट्रेट, जहाँ पे आपकी रोटेशन नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड? तो इसका इसमें जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी, जो आपकी, अब मुझे बताइए बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री कंडीशन आपकी होनी चाहिए जहाँ पे बाई इक्वल टू जीरो है, ये ऊपर वाला में बाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब जहाँ पे आपकी बाउंड्री कंडीशन होगी, यू अंडरस्टैंड, जहाँ पे बाई जीरो है और एक्स कितना है, ये पूरा एल तो नहीं होगा, बिकॉज जहाँ से लेके जहाँ तक आपका क्या है, एल है, जहाँ से लेके जहाँ तक आपका एल है। नाउ दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको क्या बताया था, इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर द लेटरल डिफ्लेक्शन इज जीरो। जीरो डिफ्लेक्शन, जो लेटरल डिफ्लेक्शन कॉलम की होगी, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ हम लेंगे इस पॉइंट से, राइट, पॉइंट क्यू से हम आपकी इफेक्टिव लेंथ लेंगे इस पॉइंट से, जहाँ से, क्योंकि जहाँ पे आप देखिए बाई की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, इस पॉइंट के ऊपर बाई की वैल्यू जीरो होगी, बिकॉज द रोटेशन विल स्टार्ट हियर, जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा और उसके बाद आपका डिफ्लेक्शन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो यू कैन से ये जो आपकी लेंथ होगी जहाँ से लेके जहाँ तक, this length, this is called the LE. This length is called the LE, and in this case LE आपने याद रखना है, this is equal to 0.707 into L, R आप ऐसे लिख सकते हैं L under root of 2. You understand? इस केस में LE कितना है, L under root of 2. इफेक्टिव लेंथ दिस इज, क्योंकि इसके जहाँ पे हमें सेम बाउंड्री कंडीशन मिल जाएंगी जिस बाउंड्री की कंडीशंस के ऊपर हमने एल्वर इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो इस केस में जो आपका पीसीआर होगा पाई स्क्वायर, बाकी चीज़ें सेम है, ई आई मिनिमम एल ई का स्क्वायर, राइट। अब एल ई क्या होगा इसमें, और दिस इज यू कैन से पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल ई का स्क्वायर होगा एल अंडर रूट 2 वाई का स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग सेम, देर इज ओनली you will see the variation in the effective length in all the cases. First case में when both the ends are hinged, in that case L is equal to L. When one end is fixed and the other end is free, उस वक्त L ही आपका 2L के बराबर है। Third case में when one end is hinged and the other end is fixed, then L is equal to L by root 2. अब fourth conditions देखिए, fourth condition में देखते हैं कि हमें end conditions कहाँ पे मिलेंगी। तो फोर्थ कंडीशन है व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, जब आपके दोनों एंड्स जो हैं फिक्स होंगे। व्हेन बोथ एंड्स जब कॉलम के दोनों एंड फिक्स हैं, when both the ends are fixed like this। अब देखिए ये आपका
लोड P है, when the load axial load P is acting on the column when both the ends are fixed, उस वक्त उसका डिफॉर्मेशन या बेंडिंग उसका कैसा होगा? बिकॉज वी हैव ड्राइव द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को भी वैसे ही ड्राइव करना है सेम एंड कंडीशंस लेके, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अब जहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितना आएगा दैट वी हैव टू सी, अदरवाइज y इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए आप, व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, अब देखिए यहाँ पे J एंड है, J भी फिक्स है और J भी आपका फिक्स है, राइट? ये दोनों एंड्स आपके फिक्स हैं एंड आई एम अप्लाइंग द लोड। अब मुझे बताइए, दिस एंड विल आल्सो नॉट रोटेट एंड दिस एंड will also not rotate when we will apply the load on the axis of the column. When we will apply the axial compressive load on the column, this end is fixed and this end is fixed of the column, तो क्या होगा, उसकी जहाँ पे रोटेशन नहीं होगी, इस पॉइंट के ऊपर रोटेशन नहीं होगी, अब इस पॉइंट के ऊपर भी रोटेशन नहीं होगी, से रोटेशन आपकी मैं कहता हूँ जहाँ पे होगी इधर से रोटेशन होगी, जैसे मैंने आपको फिक्स एंड के केस में बताया था, क्योंकि जब आपका चीज़ कोई फिक्स है, लाइक वाइज दिस, जैसे जे फिक्स है, जैसे मैंने बताया था जहाँ से फिक्स है, तो इसको आप अगर एक कप स्टील रूल ले लीजिए, उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको नीचे से पकड़िए और फिर आप लोड अप्लाई कीजिए, वो इस तरीके से बैंड होगा। लेकिन जो फिक्स पोर्शन है अप टू सम एक्सटेंट दिस विल रिमेन स्टेट, और उसकी जो बेंडिंग है दैट इज आफ्टर सम डिस्टेंस लाइक दिस। तो इसी तरीके से ये दोनों एंड्स फिक्स है, तो जहाँ पर भी और जहाँ पर भी आप कह सकते हैं दोनों एंड फिक्स है, जहाँ तक भी ये स्टेट चलेगा और ये जहाँ तक भी स्टेट होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? और अब इधर से इस तरीके से, राइट, इस तरीके से इसकी बेंडिंग होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। अब देखिए, ये जो चीज़ है, जहाँ पे देख लीजिए और जहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे x आपका 0 हो जाएगा, राइट, तो x आपका 0 है तो y तो आपका 0 होगा ही, राइट, क्यों बेंडिंग जहाँ से हुआ है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और अब देखिए, ये जो आपकी लेंथ है, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इफेक्टिव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर y इक्वल टू 0। अब डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 है, इस पॉइंट के ऊपर 0 है और इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन आपकी 0। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। तो जहाँ पे y 0 है, जहाँ पे y 0 है, तो इसका मतलब जो लेंथ जो जहाँ पे होगी दैट इज इफेक्टिव लेंथ LE, और जे किसके बराबर होगी, L/2। ये याद रखना है। इफेक्टिव लेंथ इन केस ऑफ द कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, तो इफेक्टिव लेंथ दिस इज इक्वल टू L/2। फार्मूला सेम, इसमें जो बकलिंग लोड का, क्योंकि कंडीशंस हम सेम एंड कंडीशंस में लेके हम इसको इक्वेट सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट इज PCR पाई स्क्वायर EI minimum LE square, and this is equal to pi square EI minimum L/2 का होल स्क्वायर, जहाँ 0.5 होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी एंड कंडीशंस थी, और एंड कंडीशंस के ऊपर आपको अब इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? सो यू कैन से ऑल दीज एंड कंडीशंस जो हमने ली फॉर द कॉलम्स, डिफरेंट एंड कंडीशंस में, जहाँ पे हमने जो व्हाट वी हैव सीन हियर दैट फॉर कैलकुलेटिंग द फार्मूला ऑफ द बकलिंग लोड एवरीथिंग इज सेम, only we will find the difference in the length, and that is the effective length in each and every case. जैसे when both the ends are the hinged,
In that case, our effective length that is equal to L. You understand? When one end is fixed and other end is free, then our effective length that is equal to 2L. ये जो मैं लेंथ ले रहा हूँ, ये लेंथ वो लेंथ है जहाँ पे आपका लेटरल डिफ्लेक्शन कॉलम का दैट इज इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड? तभी तो ये कंडीशंस के ऊपर ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं. सेम फार्मूला तभी मिलेगा इफ अवर एंड कंडीशंस आर सेम. यू अंडरस्टैंड? तो इन एंड कंडीशंस को सेम करने के लिए हमारा कहाँ पे डिफरेंस आएगा? ओनली वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ द इफेक्टिव लेंथ. यू अंडरस्टैंड? आप देखिए इसका हम चार्ट ड्रा कर लेते हैं. इसको मिटा दीजिए. नाउ वी हैव द डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर ईच एंड एवरी एंड कंडीशंस. ये देखा आपने, हर एंड कंडीशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट इफेक्टिव लेंथ्स हैं. इसको हम टेबल के रूप में शो करते हैं. यू अंडरस्टैंड? तो टेबल बनाएंगे तो इसको हमारा याद भी रहेगा. एक होता है क्रैम करना, हम क्रैम नहीं करेंगे. अब आपको देखेंगे कि किस तरीके से इसको राइट. तो जहाँ पे हम लिखेंगे एंड कंडीशंस एंड दिस इज इफेक्टिव एंड कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ. राइट. अब देखिए इसको मैं एक सिस्टमेटिकली लिखूंगा. अदरवाइज तो हमने जो ड्राइव किया था वहाँ पे लिखा था व्हेन बोथ द एंड्स आर द हिंज्ड. मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे. व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड other end is free. जब एक एंड फिक्स होगा और दूसरा एंड फ्री होगा उस वक्त आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या थी? 2L. यू अंडरस्टैंड? क्या आया था? 2L. चेक कर लीजिए. सेकंड कंडीशन में लेता हूं, उसको इस तरीके से कर लीजिए. सेकंड, when both the ends are hinged, when both ends are, जब दोनों एंड्स हिंज थे जिसके ऊपर हमने बकलिंग लोड का फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया था, उस वक्त हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या थी? L. L किसके बराबर था? L के बराबर था. राइट. सेकंड हो गया. आप थर्ड ले लीजिए. when one end is hinged and other end is, जब एक एंड हिंज होगा
दूसरा एंड फिक्स होगा, उस केस में क्या था आपका L/√2, राइट। फोर्थ कंडीशन ले लीजिए, फोर्थ क्या थी, when both ends are fixed, राइट। उस वक्त इफेक्टिव लेंथ क्या थी, L/2। दिस इज द टेबल। अब मैंने टेबल को ऐसे क्यों लिखा, वाई आई हैव नॉट रिटन दिस फर्स्ट व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड, एल पहले था ये इसलिए लिखा, जहाँ से देखिए आपको याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले क्या आया, 2L होता है, उसके बाद क्या आता है, L होता है, उसके बाद L/√2, जैसे डिसेंडिंग आर्डर में देखते जाइए, 2L इज मोर, उसके बाद L, उसके बाद L/√2 एंड उसके बाद L/2। तो इस तरीके से डिसेंडिंग आर्डर में चीज़ें लिखेंगे तो याद रहेंगी आपको। तो इसमें 2L के लिए था व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री, तभी तो ये कंडीशन आया था। जब एक एंड आपका फिक्स था, दूसरा एंड आपका फ्री था, देन वी गॉट दिस कंडीशन 2L। यू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन बोथ एंड्स आर द हिंज, तो ये तो आपको पता है, जब दोनों एंड्स आपके हिंज थे तो वी गॉट दिस इफेक्टिव लेंथ, दिस इज इक्वल टू L। व्हेन वन एंड इज हिंज, जब एक एंड आपका हिंज था तो दूसरा एंड आपका फिक्स था, देन वी गॉट दिस इक्वेशन। एंड व्हेन बोथ द एंड्स आर द फिक्स्ड, देन वी गॉट दिस इक्वेशन। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये आपका टेबल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो इक्वेशंस होंगी, जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इसके बेस के ऊपर होंगे। वहाँ पे आपको डिफरेंट एंड कंडीशंस दिए होंगे कॉलम के। ऑन दैट बेस आपको यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। अब जो फार्मूला आपने देखा, इन केस ऑफ इफेक्टिव लेंथ हम फार्मूला लिखते हैं, PCR पाई स्क्वायर EI minimum upon LE square. You understand? This is the formula. PCR I minimum L square. तो जहाँ से आप कह सकते हैं PCR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू LE स्क्वायर। PCR जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, LE स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली। सो यू कैन से, अगर आपकी LE की वैल्यू जो आप कहाँ पे ज़्यादा है, आपकी 2L जहाँ पे ज़्यादा है, when one end is fixed and other end is free, right? तो इस केस में क्या होगा, the value of the, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो PCR क्या होगा, कम होगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम LE, इस केस में 2L, तो मैक्सिमम LE होगी, तो बकलिंग लोड आपका जो PCR होगा वो क्या मिलेगा आपको, मिनिमम। बकलिंग लोड आपका मिनिमम होगा। और किस केस में मैक्सिमम आपका LE था, when one end is fixed and other end is free। तो इस केस में when one end is fixed and other end is free, आपका जो बकलिंग लोड है दैट इज मिनिमम। ये याद रखना है, बकलिंग लोड क्या है, मिनिमम है। और जहाँ पे आपका
मिनिमम एल होगा। अब देखिए जहाँ से चार्ट से देख लीजिए, ये मैक्सिमम एल था। वेयर इज द मिनिमम एल? Ly2 ये आपकी मैक्सिमम था यहाँ पे, और ये आपका मिनिमम है। सो मिनिमम आपको कब मिलेगा? व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स। तो मिनिमम एल कहाँ पे मिलेगा? Ly2 व्हेन वो द एंड्स आर फिक्स। और इस केस में जो बकलिंग लोड होगा आपका PCR, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बकलिंग लोड हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे आपका एंड कंडीशंस क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ का मायने क्या है, डेफिनेशन क्या है, हाउ मेनी एंड कंडीशंस आर देयर, and on that basis how we will solve the this is Ehlers equation. So ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैंने आपको क्लियर करके बताया। Now जहाँ तक तो everything is right, but everything has its own merits and demerits, you know. हर चीज़ के merits भी हैं, demerits भी हैं, मीन्स इसके अगर limitations भी हैं। अगर ये अच्छा भी है तो कई पॉइंट्स के ऊपर इसका लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस ऑफ द एल्वर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट टॉपिक का, लिमिटेशंस ऑफ एल्वर थ्योरी ऑफ बकलिंग, दैट वी विल डिस्कस, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज लिमिटेशंस। इसको मिटा दीजिए। So next heading, limitations of Ehlers theory of So limitations of Ehlers theory of buckling. You understand? So let us understand this. इसको हम understand करेंगे। Say we have a very long column. हमारे पास एक long column है, just like this. We have a very long column and suppose this is a short column, जो आपका आ गया short column and long column, right? Say we have a long column and also short column. तो लॉन्ग कॉलम के केस में से मैं अज्यूम करता हूं कि लॉन्ग कॉलम है, उस केस में उसका जो PCR है बकलिंग लोड है। यू अंडरस्टैंड? बकलिंग लोड इन केस ऑफ द
long column, this is equal to 100 Newton, right? This is I am assuming. तो जो आपका सिग्मा सी आर होगा, दैट इज सिग्मा ऑन द बकलिंग लोड, दैट इज पी सी आर बाई ए. ये मैं कहता हूँ कि से दिस इज योर 10 न्यूटन्स, राइट, लॉन्ग कॉलम के केस में. यू अंडरस्टैंड दिस? सो likewise जो आपका शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम, लेट अस से buckling load is 10,000 Newton and sigma CR, this is equal to 1,000 Newton, right? So these values I have assumed. Long column लिया, जो buckling load मैंने लिया, this is 100 Newton and जो sigma critical था, this is 10 Newton in case of the long column. And in short column, definitely buckling load is very, very high in that case. That is 10,000 Newton and 1,000 Newton. Now you understand. Just see here. Say this is your short column and long column. These are made of steels. Steel तो ऐसा भी होगा, concrete structure तो वहाँ पर भी steel होगा. You understand? तो जो आपकी बकलिंग होगी इन केस ऑफ द लॉन्ग कॉलम, वो होगी आपकी जब आपका बकलिंग लोड सपोज 100 न्यूटन है और सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन है. बट इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम आई हैव टेकन दिस कि बकलिंग लोड जो आपका है दैट इज 10,000 न्यूटन है एंड सिग्मा सी आर 1,000 न्यूटन. यू अंडरस्टैंड? इसको एक तरफ रख लीजिए, अंडरस्टैंड आगे, अंडरस्टैंड कीजिए. But you know, in case of steel, अगर मैं स्टील की बात करूं, in case of steel, because in the columns, long columns, short column, steel is the essential part of the column that you know. So in case of the steel, जो आपका सिग्मा बाई है, that is the yield strength of the steel. सिग्मा बाई क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ. ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू होती है 250 MPa, राइट? सॉरी, नॉट न्यूटन. राइट, इसकी कितना वैल्यू होती है? 250 MPa. सो व्हाट डज इट मीन? योर yield strength is 250 MPa. It means that the steel will yield when the stress is sigma की वैल्यू, this is equal to 250 MPa. जब सिग्मा की वैल्यू रीचेज टू 250 MPa, the steel will yield. Steel will yield means the column will buckle only on this critical or yield value of the steel. इसके ऊपर क्या होगा? आपका स्टील जो है इसके ऊपर क्या होगा? आपका कॉलम yield हो जाएगा 250 MPa. You understand? Now come here. In the short column, just see here, I am saying that the short column के ऊपर जो आपका सिग्मा सी आर है एज पर द क्रिटिकल लोड, वो कितना है? 1000 PA. अगर इसका बकलिंग जो है, इन केस ऑफ बकलिंग, सिग्मा सी आर की वैल्यू कितनी है? 1000 PA. बट द steel will yield on 250 MPa. Tell me,
whether we will reach up to this value? No, because the steel will already yield on 250 MPa, means column will buckle on 250 MPa. It will not reach up to this value of the stress 1000 MPa. You understand this? ये जो J वैल्यू मैंने स्ट्रेस का लिया है in case of the short column, the column will buckle before that, means yield strength of the steel I have taken or its value is 250 MPa. So it means that column will buckle only on this value of the stress. जब स्ट्रेस का ये वैल्यू पहुंचेगा तो जहाँ पर ही आपका कॉलम जो है वह बकल हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो आपका बकलिंग लोड के अकॉर्डिंग जो आपका सिग्मा सी आर की वैल्यू आई थी उसके ऊपर तो आपका कॉलम पहुंचेगा ही नहीं। बिफोर दैट कॉलम विल बकल। यू अंडरस्टैंड दिस? सो यू कैन से ये जो मैंने कंडीशंस ली थी, जो मैंने एल्वर थ्योरी ऑफ बकलिंग के केस में मैंने इनकी वैल्यूज़ ली। यू अंडरस्टैंड दिस कि सिग्मा सी आर इन केस ऑफ बकलिंग लोड के ऊपर, अगर आपका बकलिंग लोड शॉर्ट कॉलम में जब लिख लो आप पी सी आर 10,000 न्यूटन है तो सिग्मा सी आर आई विल से 1000 MPa, बट स्टील विल बकल ओनली ऑन दिस 250 MPa. सो यू कैन से शॉर्ट कॉलम के केस में क्या होगा, ये जो आपकी एल्वर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग की कंडीशन थी दैट विल नॉट सेटिस्फाई, बिकॉज 1000 MPa के ऊपर आपका कॉलम पहुंचेगा नहीं, उस स्ट्रेस के ऊपर कॉलम पहुंचेगा नहीं। बिफोर दैट कॉलम विल फेल, कॉलम विल बकल बिकॉज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील दैट इज गिवन एज 250 MPa। जहाँ से लिमिटेशंस मालूम पड़ गया आपको। अब ये ले लीजिए लॉन्ग कॉलम के केस में। लॉन्ग कॉलम के केस में सिग्मा सी आर कितना है? 10 MPa। यू अंडरस्टैंड? एज पर द एल्वर थ्योरी के केस में मैंने ये वैल्यूज लिया है। सिग्मा सी आर 10 MPa, बट द स्टील विल यील्ड ऑन 250 MPa. इट मीन्स दैट लॉन्ग कॉलम विल बकल बिफोर रीचिंग टू दिस वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। जहाँ पे पहुँचने से पहले ही कॉलम आपका बकल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें जो स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ है इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। यू फॉलो दिस पॉइंट? सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट you have found this conclusion that long column Euler theory is only applicable for the long column. For short column this theory is not applicable. You understand? Short column के लिए ये theory applicable नहीं है. This is the limitations of the Euler's theory. You understand this? क्यों नहीं है? क्योंकि जो यील्ड स्ट्रेंथ है आपका वो 250 MPa है। इन केस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील 250 MPa, बट इन केस ऑफ द शॉर्ट कॉलम जो हमारी वैल्यू होगी सिग्मा की, सिग्मा क्रिटिकल जिसे कहेंगे, वो हमारी वैल्यू 250 से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर एल्वर्स थ्योरी का जो फार्मूला है, जहाँ तक तो जिससे हमने ये वैल्यू निकाली आपकी 1000 MPa, जहाँ तक तो ये वैल्यू पहुँचेंगी नहीं। बिफोर दैट शॉर्ट कॉलम दैट विल यील्ड और दैट विल बकल, दैट विल फेल। सो वी कैन से thus the Euler theory is buckling is only applicable for the long column, but it is not applicable for the short column. You understand? ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि इसका लिमिटेशंस क्या है कि शॉर्ट कॉलम के केस में एल्वर थ्योरी ऑफ बकलिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द अब नो द पॉइंट इज ये डिपेंड करता है कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में हाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस कि दिस कॉलम इज लॉन्ग और दिस कॉलम इज शॉर्ट। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम आपका लॉन्ग है और कौन सा कॉलम जो है वो आपका शॉर्ट है? हाउ वी कम टू नो? यू अंडरस्टैंड? So yes, understand.
इसका लिमिटेशंस था क्या, सिग्मा सी आर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा बाई, राइट। तो एल्योर थ्योरी जहाँ पे लिख लीजिए, एल्योर थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल Euler theory is only applicable when sigma c और sigma CR लिख लीजिए, sigma CR less than sigma CR less than or equal to sigma y, right। तो एल्योर थ्योरी तो भी एप्लीकेबल होगी जब सिग्मा सी आर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा बाई, और अगर सिग्मा सी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिग्मा बाई होगा तो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये तो आ गया फर्स्ट कंडीशन। तो सिग्मा सी आर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी सी आर अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई, राइट। पी सी आर क्रिटिकल लोड अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा बाई। आर यू कैन से पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल ई square into A less than or equal to sigma y, you understand। this one ये आपका क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, सिग्मा सी आर लेस देन और इक्वल टू दिस वन सिग्मा बाई। अब देखिए जहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, सो आई मिनिमम जहाँ पे मैं लेता हूँ ए इंटू के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट। तो के आपका क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। थोड़ा सा इसके बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द रेडियस ऑफ जायरेशन। सो रेडियस ऑफ जायरेशन दैट इज डिनोटेड बाई के, क्या डेफिनेशन है, इसका है द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस at which all the elements of the lamina are placed at which if all the small elements of lamina
are placed, right, that distance is called the that distance is known as radius of gyration. और दूसरा इसमें क्या कंडीशन होगा, for the small elements of the lamina are placed, the moment of inertia of the lamina about the axis will not change, right? The moment of inertia about the axis, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, राइट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ लैमिना डज नॉट चेंज. तो ये आपका डेफिनेशन है इसका. यू अंडरस्टैंड? द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ gyration क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस at which if all the small elements of the laminas are placed, that distance is known as the radius of gyration and the moment of inertia of the lamina does not change. So let us understand this. इसको, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या, व्हाट इज. राइट? तो ये कोई एलिमेंट है, दिस एलिमेंट आई हैव टेकन हियर. से ये दिस आई हैव टेकन सम एरिया, ये कोई एरिया है एंड वी वांट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, about this axis I want to calculate, right? So this is it, some area is given and I want to calculate the moment of inertia about this axis. Just understand. तो moment of inertia क्या definition होता है, area into earth's moment of inertia, that is second moment of inertia. लिख लो इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, यही होगा. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. नाउ जस्ट सी हियर. So these are the different particles of the area and you will see here these particles are not lying at the same distance from the axis. ये particles जो हैं ये axis के same distance के ऊपर lie नहीं करेंगे because this area is like this. You understand? So अब we cannot calculate the second moment of inertia of this. हम इसका, क्योंकि distance आपका क्या है, distance is not same, so you can say these particles, every particles has the different distance from the axis, so distance is not same in this case here. So what we will do, how we will calculate this? So अगर हम ये पूरे का पूरा area लेके और हमें कहेंगे that is area into distance square, तो डिस्टेंस तो पार्टिकल्स का, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, स्मॉल पार्टिकल स्मॉल एलिमेंट्स, इनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से सेम नहीं होगा, द डिस्टेंस इज डिफरेंट. तो इस केस में क्या करते हैं कि हाउ वी विल
हम ये सारे के सारे पार्टिकल्स को करके एक स्मॉल स्ट्रिप वी विल टेक द स्मॉल स्ट्रिप एट सम डिस्टेंस. Let us imagine that we have converted this area into small strip like this at some distance. हमने इसको एक स्मॉल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया, राइट? इस एरिया को this area we have converted this into small strip. Now we can calculate because small strip में हमने इसको इमेजिन किया एक स्मॉल स्ट्रिप में. अब देखिए जितने भी ये पार्टिकल्स हैं इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा? अब सेम होगा. नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आपका डिस्टेंस हो गया, राइट? जो आपका डिस्टेंस है from this small strip to the axis, this distance is called k, that is the radius of gyration. You understand? इसको हम क्या बोलते हैं? This is called the radius of gyration. Or you can say this entire area, this is in this single strip. Entire area को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सिंगल स्ट्रिप में. तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस स्ट्रिप टू द एक्सिस, दिस इज कॉल्ड के, रेडियस ऑफ gyration. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में होगा आई एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज आई ए केस. यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ गया? ये रेडियस ऑफ gyration भी समझ आ गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस आपको क्लियर हो गया. अब जहाँ पे आ जाइए, जो हम जहाँ पे एक्चुअल कर रहे थे हम, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? पाई स्क्वायर ई, आई मिनिमम की जगह अगर मैं लिखूँ ए इंटू के मिनिमम का स्क्वायर, राइट? एल ई स्क्वायर इंटू ए लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा वाई. यू अंडरस्टैंड? ए और ए आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. अब ये बन गया इक्वेशन आपका पाई स्क्वायर ई ए मिनिमम स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर less than or equal to sigma y. You understand? And if you will see this equation, जहाँ पे आप देखिएगा there are two parameters of the values. एक तो ये डिपेंड करेगा कि इसका ज्योमेट्री के ऊपर और दूसरा मटेरियल्स के ऊपर. जहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, एक ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा और एक आपका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो क्या कीजिए, जो ज्योमेट्री वाले हैं एक साइड वो पैरामीटर ले जाइए, जो मटेरियल वाले पैरामीटर्स हैं वो दूसरी साइड आप पैरामीटर्स ले जाइए. यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको हम कर सकते हैं पाई स्क्वायर ई सिग्मा वाई. तो ये ई भी क्या है? ई आपका जंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ है. तो इसको आप एक साइड पे ले जाइए आप, राइट? तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं पाई स्क्वायर ई सिग्मा वाई, मैंने कहा ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पैरामीटर. जहाँ पे इस इक्वेशन में देखें, एक तो आपका ज्योमेट्री के ऊपर होगा, ज्योमेट्री जैसे के मिनिमम जो ज्योमेट्री है, एल ई लेंथ, दिस इज ज्योमेट्री. ई क्या है? दिस इज जंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. एंड सिग्मा वाई, ये क्या है? दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तो एक को मैंने एक साइड पे कर लीजिए. अब जहाँ पे लिखिए लेस देन आर इक्वल टू, दूसरी साइड पे आ जाएगा ये एल ई स्क्वायर, एल ई
अपॉन के भी इधर ले जाइए ना, नीचे आ जाएगा, ये आपका एल बन गया। यू अंडरस्टैंड? सो दीज टू पैरामीटर्स यू विल गेट पाई स्क्वायर ई सिग्मा बाई एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज एल ई अपॉन के। ये आपका जो एल ई अपॉन के, ये आपका आ गया लेम्डा, एंड लेम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो। समझ आ गया? स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई द के, और यू कैन से दिस पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा बाई लेस देन आर इक्वल टू लेम्डा स्क्वायर, राइट? लिख सकते हैं यहाँ पे। और लेम्डा मैंने आपको बताया, व्हाट इज लेम्डा? लेम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो। इसको मिटा दीजिए आप। तो जहाँ से ये इक्वेशन लिख लीजिए, जहाँ पे ये आपका था लैम्डा स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये लेस देन था, क्या आ गया? पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा बाई। यू अंडरस्टैंड? लैम्डा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर, तो लैम्डा आ गया आपका लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा वाई। यू अंडरस्टैंड? सो लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ई सिग्मा बाई। और लैम्डा ग्रेटर देन, ये पाई को बाहर ले लीजिए आप, ये पावर सिग्मा बाई, जे आपकी वैल्यू आई लैम्डा। और लैम्डा क्या है आपका? स्लेंडरनेस रेशियो। दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो. So you can say that Euler theory is only applicable when the value of the lambda, this is greater than or equal to this. अगर लैम्डा का वैल्यू इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो तब आपका एल्वर थ्योरी इज एप्लीकेबल। इस केस में आपकी एल्वर थ्योरी एप्लीकेबल होगी। और अगर लैम्डा का वैल्यू इससे लेस देन होगा, कम होगा, तो आपकी एल्वर थ्योरी ऑफ बकलिंग इज नॉट एप्लीकेबल। यू अंडरस्टैंड? तो एल्वर थ्योरी किसके ऊपर है? ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर है। अब देखिए इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए ये लैम्डा है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखो पाई। ई की, स्टील के केस में ई की क्या वैल्यू होती है? दैट इज 200। एंड व्हाट इज योर सिग्मा बाई? दैट इज 250। सिग्मा बाई 250। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 89। यू अंडरस्टैंड? 200 एंड दिस इज अ गीगा पास्कल।
तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी इसमें, लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 89। तो याद रखना है आपने कि आपने स्लेंडरनेस रेशियो को फाइंड आउट करना है। और अगर स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम की जे फार्मूला लगा के, ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला आ गया। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, तो अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 89 होगा तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग कॉलम। सो यू कैन से दिस इज फॉर लॉन्ग कॉलम, एप्लीकेबल लॉन्ग कॉलम। यू अंडरस्टैंड? तो इससे हमें पता चलेगा कि लॉन्ग कॉलम क्या है और शॉर्ट कॉलम क्या है। और अगर लैम्डा आपका लेस देन आर इक्वल टू 89 होगा, 89 से कम होगा, तो वो जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, वो आपका होगा शॉर्ट कॉलम। यू अंडरस्टैंड? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। और जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग कॉलम के केस में एल्योर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग दैट इज एप्लीकेबल, वेयर एज इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम एल्योर थ्योरी ऑफ बकलिंग इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें आपने स्लेंडरनेस रेशियो, ये सारे कितने इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट थे, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपने क्लियर किए, जहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट भी हुआ कि लॉन्ग कॉलम क्या है, शॉर्ट कॉलम क्या है, और उसके साथ साथ आपका लिमिटेशंस क्या हैं। लॉन्ग कॉलम के ऊपर तो ये थ्योरी एप्लीकेबल है, वेयर एज इन द शॉर्ट कॉलम के ऊपर थ्योरी आपकी एप्लीकेबल नहीं है। एंड देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस कि हाउ वी कैन से दिस कॉलम इज लॉन्ग कॉलम, दिस कॉलम इज शॉर्ट कॉलम। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। इफ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 89, तो लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा इज दिस वन, लैम्डा ग्रेटर देन पाई अंडर रूट ऑफ ई सिग्मा बाई। यू अंडरस्टैंड? ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा बाई आपका क्या है, दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो ये आपका फार्मूला है कि हाउ यू विल कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। एंड बाई कैलकुलेटिंग द स्लेंडरनेस ratio of the column, you can say that which column is long column and which column is short column, and where this theory is applicable. This theory is applicable in case of only the long column. In short column this theory is not applicable. You understand? So जहाँ तक आज का जो लेक्चर था, तो जहाँ तक लेक्चर आपको कंप्लीट हो गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आवाज़ में भी, थोड़ा आई मीन फीवर आल्सो, तो थोड़ा सा मेरे बोलने में आई थिंक सम तकलीफ़ महसूस किया मैंने, और आपको भी लगा होगा, तो फॉर दैट आई एम सॉरी। तो ये आपका जो लेक्चर है, ये आपका लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके बाद डालेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।